کیونکہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کیا آپ ہیں؟ کمرے میں لگے ڈھیروں آئینے ہر کونے میں ان دونوں کا عکس دکھا رہے تھے۔ ہیڈ والی لڑکی سنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسرا ابھی تک آئینے میں دیکھتے اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤڈر کی ڈبی بند کی اور تالیہ کی طرف گھومی۔ اس سیاست نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، مجھے خوشی اور اطمینان کا کرنا بھی کیا ہے، زہر خند لہجے میں بولی اور مڑ گئی۔ باہر کھڑا وان فاتح آہستہ سے پلٹ گیا۔ اسرا کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ جان گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کام سے اس کے آفس میں آئی تو دیکھا کہ وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا ہے اور اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فاتح نے آج بھی اس کی لائی کافی کو چھوا نہیں تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا، مگر ضبط سے سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آئی اور شیلف کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اسے وہاں رکھی فائلز کی ترتیب جوڑنی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ خوش اور مطمئن لوگ اچھے حکمران نہیں بن سکتے؟ ہیڈ والی لڑکی آواز پہ چونک کے مڑی۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے اینک لگائے اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھی؟ کیسا کھرا آدمی تھا، 2 منٹ بھی نہیں چھپا سکا اس بات کو۔ کیا مجھے غلط لگتا ہے سر؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی معقول بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ وہ اس کو اتنا عقل مند نہیں سمجھتا تھا، یہ تو طے تھا، مگر انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ مسکراتی۔ مجھے کسی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ خوش اور مطمئن لوگ حکومت نہیں چلا سکتے، اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اب مانتی ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بدستور ٹائپ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا کوئی خود غرض انسان۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گئی اور ڈسٹر اٹھا لیا۔ تم خوش اور مطمئن کیوں نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، خود غرض انسان نے سوال کیا۔ ہر چیز ہونے سے کوئی خوش ہو سکتا تو شہزادیاں سب سے زیادہ خوش ہوتی سر۔ تم نہ شکری ہو لڑکی۔ وہ گہری سانس لے کر کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ فولڈر صاف کر کے شیلف کے اندر رکھ دی گئی۔ یک دم چناک کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کے پلٹی۔ فاتح بے دہانی میں کرسی پہ مڑا تو ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا۔ مگ میز پہ اوندا ہو گیا جسے اس نے تیزی سے تھام لیا۔ مگ بچ گیا مگر کافی میز پہ گر گئی۔ اس کو یہاں سے ہٹا لینا تھا تاشا، وہ قدرے کوفت سے بولا۔ ہاتھ کی پشت پہ بھی گری تھی مگر سچ شکر کہ اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تالیہ تیزی سے وہاں آئی اور جلدی سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ نکالے۔ فٹافٹ میز صاف کی، 2 ٹیشوز سے فرش پہ گرے مائع کو ڈھانپا، پھر فاتح کو دیکھا جو ہاتھ کی گیلی پشت کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ باکس دور تھا اور وہ ٹیشو نہیں نکال سکتا تھا۔ تالیہ نے باکس کے بجائے اپنا بیگ اٹھایا جو شیلف پہ رکھا تھا اور اندر سے گیلے وائپس کا پیکٹ نکالا۔ موتیے کی خوشبو والے وائپس اون فاتح کے پسندیدہ تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو ایک دم سارے میں موتیے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ اس نے ادب سے پیکٹ سامنے کیا۔ جاؤ تاشا، میں خود کر لوں گا۔ سرد موہری سے وائپس جھٹک دیے اور آگے بڑھ کے ڈبے سے سوکھے ٹیشو کھینچے، پھر انہی سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تالیہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ موتیے میں جیسے ایک دم کافور کی بو گھل گئی۔ وہ چپ چاپ کام سمیٹ کے باہر نکل گئی، نہ کوئی سخت جواب دیا نہ غصے کا اظہار کیا۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ باہر کرسی پہ بیٹھے اس نے ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا دیا اور دور شیشے کی دیواروں سے بنے کیبنز کو دیکھنے لگی۔ ان کے شیشوں پہ مختلف رنگوں کی روشنی بکھری تھی، ایسے جیسے جھیل کے پانی پہ سنہری کرنوں نے سونے کا خول چڑھا رکھا ہو، اور اس دہکتے پگھلے سونے کے اندر ایک منظر ابھر ابھر کے معدوم ہو رہا تھا۔ سنہرا چمکتا تاج اس کے سر پہ جما تھا اور تاج کے پیچھے سے نکلتا سرخ ریشمی کپڑا اس کی کمر تک گرا تھا۔ پاؤں کو چھوتا کامدار سرخ لباس پہنے وہ قدیم ملاقہ کی اس سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ کوہنی پہ خالی ٹوکری لٹکی تھی۔ یہ سنبھو کی حویلی کے سامنے بنی سڑک تھی جس کے دوسری جانب درختوں سے مزین سبزہ زار تھا۔ وہاں جگہ جگہ جنگلی اور دیسی پھول لگے تھے۔ تالیہ ایک پودے کے سامنے رکی اور جھک کے پھول توڑنے لگی۔ دفاعتاً درختوں میں ہلچل ہوئی۔ اس نے جھکے جھکے گردن اٹھائی، پھر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ آپ آج جیا نہیں گئے توانکو؟ وہ سامنے سے گھوڑے کی باگ تھامے چلا آ رہا تھا۔ جواب دینے کے بجائے پہلے مسکرا کے سر کو مخصوص انداز میں جنبش دی۔
शहजादी सलाम। फिर करीब चलता आया, सफेद कुर्ते पजामे में, माथे पे बाल बिखरे, कदम उठाता गुलाम। शहजादी को वहां देख के जैसे महसूस हुआ था, आपने आज मुजस्मा बनाने का काम नहीं किया शहजादी। एडम अंदर है और काम कर आई। मैं बाहर फूल तोड़ने आई थी। वो इसके करीब आ चुका था। दोनों अब आमने सामने सड़क किनारे दरख्तों तले खड़े थे। फातिह ने घोड़े की बाग अब तक थाम रखी थी। नजरें झुकाकर इसने फूलों की टोकरी को देखा और मुस्कुराया। और तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से यकीन कर लूंगा कि तुम यहाँ सिर्फ फूल चुनने आई हो? तालिया का दिल जोर से धड़का, लेकिन फसाई बेपरवाही से कंधे झटके। सुबह सवेरे और किस लिए इन दरख्तों में भटकूंगी मैं त्वांकू? एडम अंदर घर के सहन में खजाना बुनियादों में भरने में मसरूफ था और वह घर के बाहर टहलती दरअसल पहरा दे रही थी। सनबा और गुलाम फातिह दोनों इस वक्त घर नहीं होते थे। ये अब जाने अचानक कहां से निकल आया था। चलो मान लिया, वो उसकी आंखों में देख रहा था। आप मुझ पे शक कर रही हैं? वो बुरा मान गई। या मेरा यहाँ घूमना आपकी तबीयत में नागवार गुजर रहा है? मेरे अंदर बड़ा हौसला है शहजादी। मैं सिर्फ उन बातों का बुरा मनाता हूँ जो किसी दूसरे को नुकसान दें। अपनी तबीयत पे गिरां गुजरने वाली बातों को नजरअंदाज कर देता हूँ। इसलिए जाने दें। आप बताएं, आपका वक्त कैसा गुजरा है महल में? तालिया ने गहरी सांस ली और गर्दन मोड़ के दूर तक फैले दरख्तों को देखने लगी। ताजा हवा, जंगली फूलों की महक और सुबह की शबनम से लदी मिट्टी। कदीम मलाका कितना हसीन था। बहुत कुछ है मेरे पास महल में, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मैं नाखुश और गैर मुतमईन होती जा रही हूँ। वक्त की कैद बहुत तवील हो गई है त्वांकू। ये तो अच्छी बात है। खुश और मुतमईन लोग तो वैसे भी बेकार होते हैं, अपनी जात से आगे निकल के किसी का नहीं सोचते। वो चौंक के उसे देखने लगी। वो अब अपने घोड़े के बालों पे हाथ फेरते हुए कह रहा था, खुश होना तो अच्छी बात है त्वांकू, बहुत अच्छी बात है यकीनन, लेकिन मुकम्मल खुश यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, जिंदगी में कुछ मरहले आते हैं जब हम बहुत खुश और मुतमईन होते हैं, मगर वो वक्त जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इत्मीनान और राहत हमें प्रोडक्टिव नहीं रहने देती। हम बेकार हो जाते हैं। अपनी खुशियों के छिन जाने के खौफ से बड़े बड़े खतरात नहीं मोल लेते। घोड़े के बालों को धीरे धीरे संवारते हुए इसने गर्दन मोड़ी और तालिया की आंखों में झांका। गम मिलना ज्यादा अच्छी बात है, टूटा हुआ दिल बेहतर होता है। बड़े बड़े ख्वाब सिर्फ टूटा दिल देख सकता है, या उसकी हवस और लालच इसे बेचैन रखती है और वह ताकत मिलते ही इस ताकत को बढ़ाने के लिए जुल्म ढाने लगता है, या फिर इसका टूटा दिल इसे दूसरों की भलाई के लिए काम करने की तौफीक देता है। अच्छे या बुरे, दोनों तरह के हुक्मरान इन ओहदों पे अपने टूटे दिलों की वजह से पहुंचते हैं, क्योंकि खुश और मुतमईन लोग कभी मुल्क नहीं चला सकते, ना बड़े ख्वाबों के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं। मगर आप तो हमेशा खुशबाश लगते हैं। खुश कोई नहीं होता तालिया, मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ, नेमतों का कदरदान और मुस्कुराते रहने वाला मस्बत इंसान हूँ। वरना अंदर से तो हर कोई जख्मी होता है, बस लोग अपने जख्म से मुख्तलिफ तरह के सबक सीखते हैं। कोई मरहम रखने वाला बन जाता है तो कोई मजीद घाव देने वाला। मैं क्या बनूंगी? घोड़े के बालों को सहलाता उसका हाथ थमा। चंद लम्हे वो गौर से अपने सामने खड़ी शहजादी को देखता रहा। मेरा मानना है कि सब इंसान अच्छाई पे पैदा होते हैं और बाद में अच्छे या बुरे काम करने लग जाते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो अपनी इस्लाह कर लें, बुरे लोग वो होते हैं जो बुराई पे इसरार करें और करते चले जाएं। बुराई इंसान के साथ पैदा नहीं होती, वो इंसान खुद अपने साथ चिपका लेता है। तुम्हारा माजी जैसा भी हो, तुम्हारा मुस्तकबिल कोरा कागज है, तुम इसे खुद अपने हाथों से लिख सकती हो। स्याही का रंग तुम्हारी चॉइस है। वो दरख्त, फूल, घोड़ा और कदीम मलाका शीशे की दीवारों में तहलील हो गया। वो चौंकी तो दरवाजा खुल रहा था और उस्मान और फातिह बातें करते हुए बाहर आ रहे थे। शहजादी ताशा ने अपने सर पे रखा नादीदा ताज झटका और खुद को बॉडी वीमेन तालिया के रूप में वापस लाते हुए जल्दी से उठी और उनके पीछे हो ली। वो उससे यकसर बेनियाज उस्मान से बात करता चला जा रहा था। वो उसके बाएं तरफ तेज तेज कदम उठाती चल रही थी। हेड सर पे तिरछा था और फूलदार लंबा फ्रॉक पहने वो कोई फूल चुनने वाली लड़की लगती थी। लिफ्ट के करीब वो तीनों पहुंचे ही थे कि दरवाजे खुले और 3 अफराद बाहर निकले। 2 तो आगे बढ़ गए,
मगर एक उधेड़ उम्र सुरमई सूट वाले खुश दिली से फातिह की तरफ बढ़े। फातिह साहिब, शुक्र है आज आपसे मुलाकात हो गई। उन्होंने गर्म जोशी से मुसाफा किया तो फातिह ने मुस्कुरा के उनका हाथ थामा। कैसे हैं आप दुरमान साहिब? आज आप अपनी इंडस्ट्रीज को अकेला छोड़ के हमारे दफ्तर में कैसे? किसी से मिलने आया था, मगर शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई। वो गर्म जोशी से कह रहे थे जिसे फातिह से मिलकर बहुत खुश हुए हों। आपका चेयरमैन के इंतखाब के लिए खड़े होना बहुत अच्छा लगा। दरअसल, आवाज धीमी की, मैं आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड्स मुहैया करना चाहता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो और आप चेयरमैन बन सके। तालिया ने चौंक के उसे देखा, फिर फातिह को। फातिह फंड्स की बात पे मुस्कुरा दिया और शुक्रिया में सर को खम दिया। बहुत नवाजिश आपकी। तालिया के लब भी मुस्कुरा उठे। अगर इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट फंड्स देने लगे तो सारे मसले खत्म हो जाए। प्लीज अपने स्टाफ से कहिएगा कि मेरे ऑफिस से राब्ता करें ताकि हम फंड्स की मुंतकली पे बात कर सकें। उन्होंने झट अपना कार्ड निकाल के दिया। फातिह ने कार्ड लेते हुए सर को दोबारा खम दिया। वो साहिब आगे बढ़ गए और वो तीनों लिफ्ट में दाखिल हुए तो तालिया ने हाथ बढ़ाया। सर, मैं और उस्मान इनसे कल ही मीटिंग अरेंज कर दी। कल आपके पास दोपहर में वक्त होगा। और लिफ्ट के दरवाजे जैसे ही आपस में मिले, फातिह ने कार्ड को शड़प से 2 और फिर 4 टुकड़ों में फाड़ा। फिर बेनियाजी से वो टुकड़े तालिया के हाथ पे रखे। ट्रैश कैन में डाल देना। तालिया की हथेली फिजा में ठहर गई। सदमे से लब खुल गई। मगर सर, वो हमें फंड्स दे रहे थे। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त इलेक्शन के लिए पैसे ना होना ही तो है। ताशा, वो इसकी तरफ मुड़ा और संजीदगी से बोला, ऑफिस लाइफ में तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपनी खुशी अखलाकी और शहर टपकाती बातों से खुद को तुम्हारा मुखलिस तरीन दोस्त साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, ऑफिस लाइफ में लोगों के अच्छे या बुरे होने का फैसला उनकी मीठी जबानों से नहीं, उनके अमल से करते हैं। अमल से? इसने मुट्ठी बंद करके धीरे से गिरा दी। लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही थी। हाँ, हमेशा ये देखते हैं कि ये शख्स जितनी अच्छी या बुरी बातें कर ले, क्या उसके अमल से मुझे कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं। नरमी से समझा के चेहरा वापस बंद दरवाजों की तरफ मोड़ लिया। ये साहिब हर दफा यही कहते हैं चेतालिया। उस्मान खनखार के बताने लगा। झूठे वादे और ढकोसले। आज तक उन्होंने पार्टी को एक ढेले का फंड नहीं दिया। उसने चुपचाप मुट्ठी स्याह बैग में उलट दी। कार्ड के टुकड़े अंदर गिरते चले गए। यहाँ तो लोग स्कैमर से ज्यादा धोखेबाज थे। वो बाहर पार्किंग एरिया में अपनी कार के करीब आए थे जब फातिह रुका। कनपट्टी पे हाथ रखे आंखें जरा मूंदी। उस्मान फौरन अलर्ट हुआ। सर, आपने नाश्ता भी नहीं किया था आज और खाना भी नहीं खाया। आपका शुगर लो हो रहा है। तालिया फौरन से तालिया को देखा तो उसने तेजी से जंबील में हाथ डाला और बिस्किट का पैकेट निकाल कर जल्दी जल्दी उसे खोला और फातिह की तरफ बढ़ाया। आप कुछ खा लें। वो परेशान हो गई थी। उसकी जरा सी तकलीफ इसे बौखलाए दे रही थी। फातिह ने इसको देखा, फिर बिस्किट के खुले पैकेट को। दोबारा एक सपाट नजर उस पर डाली। जरूरत नहीं। खा ली सर, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। यकीन करें, ये कड़वा नहीं है। वो जो कार का दरवाजा खोलने लगा था, तेवरा के पलटा और बरहमी से उसे देखा। तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो? हाँ। एकदम से उसे झाड़ा तो बिस्किट वाला हाथ ढीला होकर नीचे आ गिरा। मैं सिर्फ, अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी तो ना करो, मगर ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। गुस्से से झिड़क के वो कार की तरफ बढ़ गया। तालिया के गले में आंसुओं का फंदा अटकने लगा, मगर इसने आंखों को गीला न होने दिया। चुपचाप फ्रंट सीट पे आ बैठी। उस्मान ने भी खामोशी से लब सिए स्टीयरिंग संभाल लिया। एक लफ्ज न बोला। दरवाजा बंद करके तालिया ने जोर से बिस्किट का पैकेट बैग में फेंका। सारे बिस्किट अंदर बिखर गए। इसने गुस्से से जिप बंद की और बाहर देखने लगी। उखड़, मगरूर आदमी। अगर इसने एक दफा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसकी नौकरी छोड़ दूंगी। अकेला रहे फिर ये सारी जिंदगी। इसने तय कर लिया था, बस एक और चांस देना था वो फातिह को। पुलिस स्टेशन की खिड़कियों से बाहर पहली शाम दिखाई दे रही थी। इस बड़े से होलनुमा कमरे में टीवी चल रहा था और कुर्सी पर बैठा ऑफिसर पेपर मेज पे रखे बर्गर खाते हुए शौक से मैच दिख रहा था। मुझे एक कॉल तो करने दो। एक तरफ बनी कोठरी में समी खड़ा सलाखों को थामे मुसलसल मिन्नत कर रहा था। खुदा के लिए मेरी बात सुनो। वो जोर से चिल्लाया,
تو آفیسر نے برا سا منہ بنا کے گردن موڑی۔ بڑا نوالا چبانے کے باعث اس کے گال پھولے ہوئے تھے۔ نوالا حلق میں اتارا اور بولا، وکیل کو کال کروا تو دی تھی، اب اور کیا چاہیے؟ ایک کال، خدا کے لیے صرف ایک کال کرنی ہے دوست کو، پلیز۔ اب وہ جلدی جلدی منت کر رہا تھا۔ آفیسر نے برگر میز پہ رکھا اور اسے گھورتے ہوئے اٹھا، پھر موبائل فون لیے اس کے قریب آیا۔ صرف اس لیے کرنے دے رہا ہوں تاکہ تم میرا میچ خراب نہ کرو۔ 5 منٹ بات کر سکتے ہو تم، صرف 5 منٹ۔ اسے گھور کے موبائل تھمایا تو سمی نے اسے بے قراری سے جھپٹا، پھر جلدی جلدی نمبر ملانے لگا۔ آفیسر واپس کرسی پہ بیٹھ گیا اور اپنا برگر اٹھا لیا، نظریں ٹی وی پہ جما دی۔ سمی بار بار نمبر ملا رہا تھا، مگر لمبی گھنٹیوں کے بعد جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کے ابھرنے لگا۔ ہیلو، بالآخر فون اٹھا لیا گیا۔ رملی صاحب، پلیز فون مت بند کیجیے گا، مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے۔ فرتے جذبات میں وہ جوش سے تیز تیز کہنے لگا، میں تالیہ مراد کا شوہر ہوں اور مجھے آپ کو تالیہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ حالم کا بنگلہ اس ڈوبتی شام میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بھاری بھرکم داتن بیٹھی تھی۔ اس کی گھورتی ہوئی نظریں سامنے والے صوفے پہ بیٹھے ایڈم پہ جمی تھی۔ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ سادہ سا نوجوان مسلسل گردن موڑ موڑ کے اطراف کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں تالیہ کے انتظار میں وہاں بیٹھے تھے۔ ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ لاؤنج بہت خوبصورتی سے جدید طرز پہ راستہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف اوپن کچن تھا، اوپر جھلملاتے فانوس سجے تھے۔ دائیں طرف زینہ تھا جو اوپر جاتا تھا۔ وسط میں مخملی صوفے چوکھٹے کی صورت رکھے تھے اور ان پہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایڈم کی نظریں سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک نمائشی ایشٹرے پہ جا ٹکی تو داتن نے آئی برو بھینچ کے اسے دیکھا۔ یہ تالیہ نے بہت محنت سے سنگاپور سے چرائی تھی، اس کو بری نظر سے نہ دیکھو۔ ایڈم نے اثر لیے بغیر نظروں کا رخ دیوار کی طرف موڑا جہاں سنہری فریم میں ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ یہ ہم نے ایک میوزیم کے کیوریٹر کی تحویل سے چرائی تھی، اصلی پینٹنگ کو نقلی سے بدل کے۔ وہ اصلی بیچنے جا رہا تھا، اس کو نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ ایڈم نے محض ایک چپتی ہوئی نظر داتن پہ ڈالی اور پھر گردن پوری پھیر لی۔ اب وہ کونے میں رکھے ایک گلدان کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کو چرانے کا سوچنا بھی مت، یہ ایک نیلامی کے سٹور روم سے اٹھایا تھا ہم نے، اور اس گھر میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو؟ وہ جل کے بولا تو داتن نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ہاں تم۔ ایڈم نے سر جھٹکا جیسے بہت ضبط کیا ہو اور پھر میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھے وہ ویڈیو دکھا دیں جو وون فاتح نے پولیس اسٹیشن میں بنوائی تھی۔ چیتالیہ نے وہی دیکھنے کے لیے مجھے یہاں بلوایا ہے، مگر وہ خود ابھی تک نہیں آئے۔ داتن مزے سے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی، اور جب وہ آ کے دیکھیں گی کہ آپ نے اتنی دیر مجھے مشکوک گردان کے فارغ بٹھائے رکھا تو ان کی نظروں میں برا کون بنے گا؟ معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ داتن کے تاثرات بدلے۔ پہلے اس مخنی سے لڑکے پہ غصہ چڑھا، مگر پھر خیال آیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ چپ چاپ اٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو لگانے لگی۔ میں ملاقہ 3 دن کے لیے آیا تھا، مگر 3 گھنٹے بھی نہ رک سکا۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ صوفے پہ بیٹھے تھے اور ایڈم لیپ ٹاپ پہ جھکے غور سے ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں اسکرین پہ فاتح اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا تھا۔ مگر وہ تو صرف 1 دن کے لیے ملاقہ آئے تھے اور 3 گھنٹے سے زیادہ رکے تھے۔ اس کے یوں بڑبڑانے پہ داتن نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں ملاقہ واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ اسکرین پہ نظر آتا فاتح کمشنر سے پوچھ رہا تھا۔ میں ان کا باڈی گارڈ نہیں، باڈی مین تھا، ایڈم نے خفکی سے کہا تو داتن نے زور سے پیر زمین پہ پٹکا۔ وہ چونکا۔ تم چپ کر کے نہیں دیکھ سکتے؟ غلطی سے باڈی گارڈ بول دیا ہوگا۔ ایڈم نے سر جھٹکا اور خاموشی سے ویڈیو دیکھنے لگا۔ سارا قصہ سنا کے فاتح کہہ رہا تھا، اس کے بعد سے میرا دماغ غنود کی کسی کیفیت میں ہے۔ میرا باڈی مین رکا اور جیسے تصحیح کی، باڈی گارڈ مجھے گھر لایا۔ ایڈم تیزی سے سیدھا ہوا۔ نہیں، غلطی نہیں ہے یہ، وہ جان بوجھ کے غلط الفاظ بول رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انہوں نے ہمارے لیے ریکارڈ کی ہے، اس میں کوئی پہیلی ہے، کوئی بات جو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اب کے داتن چونکی۔ واقعی اس نے باڈی مین کہتے کہتے باڈی گارڈ کا لفظ بول دیا۔ یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایڈم نے جلدی سے پینٹ سے چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکالا اور قلم سے اس پہ الفاظ گھسیٹنے لگا۔ ویڈیو شروع سے لگا لی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ اب کے داتن کے چہرے کے زاویے بھی سیدھے ہو گئے تھے۔
हर वो लफ्ज जो वो बोल रही हैं गलत अल्फाज का मतलब है। वो चाहते हैं हम इनके अल्फाज पे गौर करें। वीडियो खत्म हुई तो उसने कागज चेहरे के सामने उठा के गौर से देखा। वोनफाते झूठ और गैर जरूरी अल्फाज दोनों से एतराज बरतते हैं और इस वीडियो में इसने पैड घुटने पे रखा और जगह जगह दायरे लगाने लगा। ये दो अल्फाज उन्होंने बार बार दोहराए हैं, 3 और सवाल। मैं 3 दिन के लिए मलाका आया, 3 घंटे से ज्यादा ना रुक सका। वो 3 चोर थे। उन्होंने वॉलेट, मोबाइल और पैसे मांगे। वो 3 चीजें जो चोर मांगते हैं। ये वीडियो मुझे 3 मिनट के अंदर अंदर भेज दो। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिले। मुझे तुमसे बार बार सवाल करना अच्छा नहीं लगेगा। वो जोश से इसके अल्फाज दोहरा रहा था। दातन ने गाल तले उंगली रखे सोचती नजरों से उसे देखा। 3 सवाल, और उसका क्या मतलब हुआ? एडम का सारा जोश एकदम झाग की तरह बैठ गया। ये तो मुझे नहीं पता। दातन के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। दिल को जैसे सुकून पहुंचा। दिफापन दरवाजा खुला और तालिया अंदर दाखिल होती दिखाई दी। हैट और बैग हाथ में था और चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे। जे तालिया, वोनफाते ने इस वीडियो में कोई हिंट छोड़ा है और ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? हाँ, इसने आते साथ ही गुस्से से हेड परे उछाला। वो दोनों हक्का बक्का से उसे देखने लगे। आराम से तालिया। दातन ने दोनों हाथ उठाए। माना कि ये लड़का इंतहाई नामकूल, मुंह फट और नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर तुम आराम से भी इसको घर से निकलने का कह सकती हो। एडम ने जवाबन खा जाने वाली नजरों से दातन को घूरा और तालिया ने झुंझला के स्याह पर सोफे पे फेंका। मैं वोनफाते की बात कर रही हूँ। खुद को कोई महाराजा समझते हैं वो। मैं सारा दिन उनकी खिदमत करूं मगर उनको मेरे हर काम पे एतराज होता है। बैग फेंकने से सारी चीजें उलट के जमीन पे जा गिरी। वो अब गुलाबी तमतमाते चेहरे के साथ लाउंज में आगे पीछे टहलते हुए गुस्से से बोले जा रही थी। कॉफी मेरे हाथ की जहर लगती है, टिश्यू मुझसे लेना पसंद नहीं, शुगर लो हो तो मेरा दिया बिस्किट नहीं खाएंगे। इतना गरूर, इतनी हकारत, मसला क्या है इस शख्स के साथ? जब कोई जवाब न मिला तो वह कराह के पलटी और गुस्से से एडम को देखा। तुम 2 मिनट मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती? मगर एडम इसके पर्स से गिरी चीजों को देख रहा था। ये पर्स चोरी का नहीं है। अच्छा, दातन ने इसे घूर के वजाहत दी। एडम ने झुक के बिस्किट का खुला पैकेट उठाया और तालिया को देखा। आपने उनको ये बिस्किट दिए? शुगर लो हो तो और क्या देते हैं, ये उनके फेवरेट बिस्किट हैं। एडम ने दोनों आईब्रो बेयकीनी से उठाए। जी तालिया, फाते साहिब को मूंगफली से शदीद एलर्जी है। इनका सांस बंद हो सकता है मूंगफली से। एक दाना इनको आईसीयू में पहुंचा सकता है और आपने इनको मूंगफली वाले बिस्किट दे दिए? एकदम से जैसे किसी ने तालिया पर ठंडा पानी उंडेल दिया हो। वो सुन सी खड़ी रह गई। और ये गीले वाइप? एडम अब जमीन पर झुका एक एक चीज उलट पुलट रहा था। वो भी मोतिये की खुशबू वाली। इनको ये खुशबू नापसंद है और वो सूखे टिश्यू इस्तेमाल करते हैं। कॉफी कौन सी बना रही हैं आप? कैपेचिनो क्रीम के साथ। वो हकलाई। वो लेक्टस इंटॉलरेंट है, दूध से बनी चीजें नहीं पी सकते और आप इनको दूध वाली कॉफी दे रही हैं। और ये अखबार, ये तो हुकूमती पार्टी का शाया करता है। इनका हुकूमती कॉलम निगारों की तहरीरें पढ़ के बीपी हाई होने लगता है। मगर तालिया मुराद सुन नहीं रही थी। ज़हन में फातह के अल्फाज गूंज रहे थे। ऑफिस लाइफ में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी खुश अखलाकी और शहर टपकाती बातों से खुद को तुम्हारा मुखलिस तरीन दोस्त साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, ऑफिस लाइफ में लोगों के अच्छे या बुरे होने का फैसला उनकी मीठी जबानों से नहीं, उनके अमल से करते हैं। हमेशा ये देखते हैं कि ये शख्स जितनी अच्छी या बुरी बातें कर ले, क्या उसके अमल से मुझे कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो वह जिसको इसका तहकीर अमेज रवैया समझ रही थी, वो दरअसल उसका सख्त था। वो समझ रहा था कि वो जान के उसे गलत चीजें दे रही है, फिर भी उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला, बस उसकी चीजें रद्द कर दी ताकि वो खुद अपनी तस्हीह करे। इसलिए उसने कहा कि इसकी पसंद नापसंद मालूम करना तालिया की जॉब है। और वो क्या सोचता होगा जब उसने मूंगफली के बिस्किट देखे होंगे कि वो उसे मारना चाहती है। तुम जानबूझ के ये कर रही हो। सारा गुस्सा जब्त करके बस इतना कहा गया, गोया उसे चिन जोड़ा। वो इसे नौकरी से नहीं निकालना चाहता था, वो इसे काम करने का मौका दे रहा था। या अल्लाह, वो अपना क्या इंप्रेशन दे रही थी। अब्दुल्ला ने मुझे गलत गाइड किया।
इसके जहन में झक्कड़ चल रहे थे। अब्दुल्ला की जगह आप मुझसे पूछती तो। खैर, ये देखिए। दातन ने चौंक के इसे देखा, जो जोश से तालिया को कागज दिखाने लगा। तालिया उसके साथ आ बैठी और बेध्यानी से सुनने लगी। हमने इस वीडियो से एक नतीजा निकाला है कि हमने वो अपनी जहानत को दातन और अपना मुश्तरका काम बता रहा था। दातन के तने असाब ढीले पड़ने लगे। 3 सवाल, क्या मतलब हुआ इसका? तालिया ने बेतवज्जोही से इसे देखा। एडम ने शाने उचका दिए। हम कैसे जान पाएंगे? दातन, थाने के बाद वो कहाँ गए थे? ये वीडियो तो 12 बजे के बाद की है, जबकि वो 4-5 बजे तक घर से बाहर रहे हैं। क्या हम शहर के दूसरे सीसीटीवी कैमरों से इनकी नकलो हरकत मालूम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो आला दिन का चिराग है वो झट से ऐसे कर देगा। दातन मसनूई नाराजी से बोली और उठ खड़ी हुई। यार दातन, तालिया कराही। एक तो पहले अब्दुल्ला और अब ये दातन। 1-2 दुकानों के बाहर लगे कैमरों की फुटेज तो मैं निकलवा सकती हूँ, मगर हर सड़क के कैमरे का रिकॉर्ड लेना नामुमकिन है। मछली बनाई है मैंने। और सुनो, तुम लड़के, तुम खाना खा के जाना। पता नहीं जिंदगी में कभी मछली तुम्हें नसीब हुई भी है या नहीं। बुड़बुड़ाते हुए कहती किचन की तरफ चली गई। एडम पीछे से चमक के बोला, जब भी नसीब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की हुई है। फिर मुड़ा तो देखा, तालिया सोचते हुए स्क्रीन को देख रही थी। थोड़ी हथेली पे गिरा रखी थी। वोनफाते ने उस रात क्या किया था? वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं जो डायरेक्ट ईमेल में नहीं लिख सके? क्या इस जादू से निकलने का कोई तरीका है? वो चौंकी। क्या उनकी यादों के वापस आने का कोई रास्ता है? आपकी याददाश्त भी तो टुकड़ों की सूरत में कुछ कुछ वापस आई थी। जब मैं केएल आई थी इतने साल बाद, तो एयरपोर्ट पे मुझे पहली दफा ख्वाब सा दिखाई दिया था। इसके बाद वक्फे से कभी कभी कोई बचपन का विजन आता था, कभी माजी का, कभी मुस्तकबिल का। जब आपको पहली दफा कोई विजन नजर आया तो ऐसा क्या था जो उसका मुहर्रिक बना था? मुझे नहीं याद एडम। इसने मायूसी से सर झटका और अभी मेरे जहन में सिर्फ अब्दुल्ला घूम रहा है। इसकी तुम्हें कल खबर लेती हूँ। दायां हाथ कटवा दीजिएगा उसका। ओह सॉरी, याद आया, अब तो आप किसी का हाथ भी नहीं कटवा सकती। मुस्कुरा के बोला और अपने कागज समेटने लगा। तालिया इतनी कबीदा खातिर थी कि जवाब में कुछ बोली ही नहीं। ऑफिस केबिन के तार में बने थे और इस वफून की घंटियों, टाइपिंग की आवाजों और गुफ्तगू की बुनबुनाहट से गूंज रहे थे। ऐसे में अब्दुल्ला अपनी शर्ट का कॉलर दुरुस्त करता केबिन के दरमियानी रास्ते से गुजरता आगे बढ़ रहा था। राहदारी के एक तरफ वोनफाते का ऑफिस था, जिसके बाहर तालिया बैठी थी और सेक्रेटरी की कुर्सी पे उस्मान बड़ा जमान लैपटॉप पे काम करता दिखाई दे रहा था। सर अंदर हैं? उन्होंने बुलवाया था। अब्दुल्ला खुश दिली से कहता करीब आया तो उस्मान ने चौंक के गर्दन उठाई। सर ने बुलवाया? किस वक्त के लिए? इसने अचंभे से कहते अपनी डायरी खोली तो तालिया मुस्कुराती हुई खड़ी हुई। फूलदार फ्रॉक पे सर के ऊपर तिरछा सफेद हेड जमा रखा था। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के अब्दुल्ला, वो बहुत अपनायत से कह रही थी। दरअसल मैंने बुलवाया था तुम्हें। अब्दुल्ला की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, उसका माथा ठिनका। जी तालिया, मैं। तालिया ने मुस्कुराते हुए लबों पे उंगली रखी और चंद कदम चल के करीब आई। अब उसके ऐन सामने खड़े उसकी आंखों में झांका। ये तुम्हारी लिखाई में लिखी जेडी है अब्दुल्ला। शफाफ प्लास्टिक बैग में मुकीम कागज लहराया। इसको जानती हो मैंने प्लास्टिक बैग में क्यों बंद करके रखा है? अब्दुल्ला ने थूक निकला मगर बजाय कंधे उचकाए। देखिए मैं, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेंसी टू मर्डर का सबूत है। वो मुस्कुराते हुए चब्बा चब्बा के कह रही थी। तुमने लिखा है कि वो मूंगफली के बिस्किट शौक से खाते हैं। तुम इनको मेरे हाथों कत्ल करवाना चाहते थे क्या? जे तालिया। उस्मान उठ खड़ा हुआ और मसालेहाती अंदाज में मुदाखलत की कोशिश की तो वो तेजी से उसकी तरफ घूमी। उस्मान साहिब, आप जानते थे कि ये मुझे गलत गाइड करके किया है, लेकिन आपने एक दफा भी मुझे एहसास नहीं दिलाया। जैसे तब चुप रहे वैसे ही अब भी चुप रहे। फिर 16 बार नजरों से वापस अब्दुल्ला को देखा। जे तालिया, गलती से शायद। अपनी वजाहत बचा के रखो। तुम सिर्फ मुझे डांट पड़वाना चाहते थे। मैं जानती हूँ तुम इनको कत्ल नहीं करना चाहते, और यही बात तुम अंदर जाके उन्हें बताओगे। जे तालिया, देखिए अगर तुम नहीं बताओगे
तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम्हें जिंदगी गुजारने का एक गुर बताऊं अब्दुल्ला, जिसको धोखा दिया जाता है इसको अपने मुंह से सच बताना बेहतर होता है, बजाय इसके कि इसे किसी तीसरे शख्स से पता चले। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग उसकी तरफ बढ़ाया तो अब्दुल्ला ने लब भींच लिए और बैग थामा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस्मान कुर्सी पे बैठ गया, लेकिन बार बार अफसोस से बंद दरवाजे को देखता था। चेतालिया, ये ऑफिस के मामलात हमें आपस में हल करने चाहिए। हर बात बॉस को बताना आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उस्मान उनचे साहिब, इसने सीने पर बाजू लपेटे और मुस्कुरा के उसे देखा। एक बात आज आप मेरी लिख के रख लें, तालिया मुराद अगर सबके साथ ईमानदारी से मामलात कर रही है तो उसके साथ गलत बयानी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। उस्मान ने खामोशी से लैपटॉप अपने सामने कर लिया और टाइप करने लगा। कुछ देर बाद अब्दुल्ला बाहर आया और खामोशी से तालिया को देखते हुए कागज के 4 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंके। आई एम सॉरी चेतालिया, जैसे जबरदस्ती ये अल्फाज अदा किए, फिर ठहरा। अब बॉस को पहले ही बता चुकी थी तो मुझे इतराफ करने को क्यों कहा? ये बताया था कि गलती की है, ये नहीं बताया था कि क्या गलती की है। बहरहाल बॉस ने यकीनन तुम्हें कहा होगा कि मुझसे माफी मांगने के बाद मैं तुम्हें उस्मान से लेटर बनवा दूंगी, मेरा टर्मिनेशन लेटर, राइट? वो करवाहट से बोला, चेहरे पे बेबसी भरा गुस्सा था। तालिया ने पर्स से कागज निकाला और उस्मान की मेज पे ला रखा। ये अब्दुल्ला का अपॉइंटमेंट लेटर है, हम अब्दुल्ला को अकाउंट्स में एक बेहतर जॉब दे रहे हैं। वो जितनी संजीदगी से बोली, उस्मान का मुंह खुल गया। अब्दुल्ला ने भी बेयकीनी से उसे मुड़ के देखा। आप मुझे जॉब दिलवा रही हैं? दोबारा? हाँ, क्योंकि तुमने वॉन फाते से सच बोला है, और तुम्हारी उससे बड़ी सजा क्या होगी कि तुम रोज एक ही ऑफिस में उनका सामना करोगे और रोज अपनी हरकत पे शर्मिंदा होगे। रुखाई से कह के अब्दुल्ला को घूरा। अब्दुल्ला दिल से शर्मिंदा न था, इसे बेबसी भरा गुस्सा चढ़ा हुआ था, मगर इस बात ने इस पे गोया घड़ों पानी डाल दिया। चुपचाप उस्मान के करीब चलाया। अगर अपनी लिखाई में ना लिखता तो ये कभी मेरे खिलाफ इसे ना इस्तेमाल कर सकती। तालिया कॉफी बना के वापस आई तो अब्दुल्ला जा चुका था और उस्मान उसी तरह बैठा था, इसे देख के खनखरा। मुझे खुशी है उसकी जॉब नहीं गई। चेतालिया, जॉब का छूट जाना इंसान के साथ क्या कर देता है आप नहीं जानती। उस्मान ने तंबीह की, मगर इसने महज सर झटक दिया। अमाल के नताइज होते हैं जो भुगतने पड़ते हैं। फातिह ऐनक लगाए एक फाइल का मुतालिया कर रहा था। कोट स्टैंड पे टंगा था और वो शर्ट के आस्तीन मोड़े, टाई ढीली किए, मेज पे कोहनियां रखे बैठा था। इसे देख के नजरें उठाई तो उसने तुम्हें गलत जेडी दी थी। माफी मांगी उसने तुमसे? अंदाज दोस्ताना था। सुबह उसकी सारी बातें सुन के उसने बस यही कहा था कि वो तुमसे माफी मांग ले तो हम इसे दोबारा इसी ऑफिस में अकोमोडेट कर देंगे। जी सर, मांग ले। पूछ सकती हूँ कि आपने इसे जॉब से क्यों नहीं निकाला? इसने कॉफी का मग उसके सामने मेज पे रखा और अचंभे से बोली, आप तो सच झूठ के मामले में बहुत सख्त हैं, फिर क्यों इसे रख लिया? क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है ताशा। मैं अपने साथ 16 घंटे गुजारने वाले लड़के को इस मौके पे अपना दुश्मन नहीं बना सकता। और ये तुम लोगों की एक दूसरे के खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, वहां सुकून ही सुकून था। राइट सर, ये रही आपकी कॉफी जो आपको वाकई पसंद है। फिर इसने एक गम का पैकेट मेज पे रखा। ये रही क्रंची गम्स, क्योंकि आप काम करते हुए सोवी गम्स नहीं चबाते। और हाँ, आपके कोट से आपकी फ्लैग पिन गिर गई थी तो मैं ये नहीं ले आई हूँ। 2 एक्स्ट्रा फ्लैग पिन्स मेरे बैग में भी हैं और एक नई झंडे वाली पिन इसके कोट पे लगाई। फातिह ने मुस्कुरा के उसे देखा। और अब तुम्हें एकदम मेरी पसंद नापसंद का इल्म हो गया? वो क्या है सर कि ये मेरी जॉब है? तालिया मुराद उसकी तरफ घूमी और मुस्कुरा के बोली, मैंने अब्दुल्ला पे भरोसा करके सुस्ती दिखाई थी, लेकिन अब मैंने आप पे रिसर्च की है और आपके नए पुराने सब इंटरव्यूज देख और पढ़ डाले। उम्मीद है अब मैं आपकी हर चीज का ख्याल रख सकूंगी। वैसे आपका वो बटवा कहाँ गया जिसमें आप पॉपकॉर्न के दाने रखते थे? एकदम गरम कड़वे घूंट ने फातिह की जबान जला डाली। इसने तेजी से मग नीचे किया, मुस्कुराहट गायब हुई और पेशानी पे सिलवटें पड़ी। कौन सा बटवा? ये किसने कहा तुम्हें? आपने?
آپ ने ही तो कहा था कि आपकी पसंद नापसंद का पता चलाना मेरी जॉब है और मैं अपनी जॉब आखिरी हद तक करना जानती हूँ सर। इंटरव्यू वाले रोज मैंने आपसे कहा था ना, तानिया मुराद को सब करना आता है। उम्मीद है इलेक्शन तक आप मुझे भी फायर करने का नहीं सोचेंगे। वो बटवा आपके पास होता था हमेशा, अब नहीं है, इसे ढूंढ लीजिएगा। जताती मुस्कुराहट से कहती वो मुड़ी और बाहर निकल गई। वो उन फाते कुछ देर लब भींचा बैठा रहा, फिर मोबाइल उठाया और तेजी से उंगलियों को कीपैड पर कर दी। हालिम, कुछ इल्म हुआ कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? एक यही मोमा था जो हल नहीं हो रहा था। वो बाहर कुर्सी पर बैठी उसका पैगाम पढ़ रही थी, फिर जवाब लिखना शुरू किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ फाते साहिब, उम्मीद है आपको मायूस नहीं करूंगा। फिर इसने हैंड्स फ्री कानों में लगाए और वहीं बैठे बैठे वो वीडियो दोबारा देखने लगी। रात तो अब्दुल्ला की वजह से ज़हन बटा हुआ था, अब पूरी तवज्जो से उसका एक एक लफ्ज सुनने लगी। 3 सवाल, वो इन अल्फाज को बार बार दोहरा रहा था। आखिर क्या मतलब था उनका? वो समझने से कासिर थी। वो एक शोर से भरपूर ऑफिस था, लोग हर कोने से गोया निकल निकल के आ जा रहे थे। फोन की घंटियां कानों में सूर फूंक रही थीं। हर कोई बोल रहा था, चल रहा था। ऐसे में एडम बिन मोहम्मद एक फोल्डर थामे धड़कते दिल के साथ राहदारी में आगे बढ़ रहा था। एक दरवाजे के सामने वो रुका और टाई दुरुस्त की। तालिया की हदायत के मुताबिक उसने सूट पहना था, जिसमें वो शदीद गैर आरामदेह था। दरवाजे को खटखटाया और अंदर झांका। अंदर एक उदेड़ उमर साहिब फाइलों में उलझे बैठे थे। वो एक टैबलॉइड का दफ्तर था। ये दिलचस्प और सनसनीखेज किस्म के मैगजीन होते हैं जो आम खबरों से ज्यादा चटपटे स्कैंडल्स को तरजीह देते हैं। इस ऑफिस में भी जा बजा ऐसे ही पोस्टर लगे थे। उसे देख के उन साहिब ने हाथ से इशारा किया, आ जाओ आ जाओ। फिर बालों को खुजाया, उलझे अंदाज में फाइल्स आगे पीछे की। वो शदीद मसरूफ नजर आते थे। मैं हालिम के रेफरेंस से आया हूँ। वो सामने बैठा और खनखारते हुए फोल्डर मेज पे रखा। इसमें हालिम की तरफ से एक सिफारिशी लेटर भी है। उसका कहना है कि आपको एक रिपोर्टर की जरूरत है जो हकीकी वाकयात को दिलचस्प कहानी की सूरत लिख सके। देखो मियाँ, जरूरत तो हमें किसी की नहीं है, लेकिन हालिम के एहसान बहुत है मुझ पे, तो मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। उन्होंने फोल्डर अपने करीब खिसकाया, मगर उसे खोला नहीं, बस सादे अंदाज में बताने लगे। एडम के कंधे ढलक गए, लेकिन फिर दोबारा अपने जोश को जगाते हुए बोला, अगर आप मशहूर एक्ट्रेस डेज़ी मिल के स्कैंडल पे लिखी मेरी तहरीर पढ़ लें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। और समझो मैंने पढ़ ली और तुम्हें बतौर फ्रीलांसर रिपोर्टर रख रहा हूँ। तनख्वाह मिल जाए करेगी और ऑफिस आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी है, चाहे सारे शहर की खाक छानते रहो, मगर हफ्ते में एक दिन आके तुम्हें कोई सनसनीखेज स्टोरी जमा करानी होगी। हमारा टेबलॉइड प्रिंट से ज्यादा ऑनलाइन चलता है। देखो भैया, एक किताबों का दौर तो रहा नहीं, ये स्क्रीन का दौर है, इसलिए तस्वीरें, वीडियो, आर्टिकल्स जो भी हो ले आया करो। अब अगर तुम्हारी तबीयत पे गिरा ना गुजरे तो बाहर तशरीफ ले जाओ, क्योंकि मैं इस अदाकारा के एकदम स्कार्फ ओढ़ लेने को कुछ साजिशी रुख देकर कहानी बनाना चाह रहा हूँ। एक तस्वीर लहरा के दिखाई। वहां तो ना लिहाज था ना मुरव्वत। खड़ूस एडिटर ने एक ही सांस में इसके सिफारिशी और अपने झूठे होने की तस्दीक की और जाने का इशारा किया। पढ़ जरूर लीजिएगा सर, वो गहरी सांस लेकर बोला और फिर थके थके अंदाज में बाहर निकल गया। किताबों का दौर नहीं रहा। ये अल्फाज मैगजीन के दफ्तर से घर तक उसका पीछा करते आए थे। घर के करीब छोटी सी मार्केट में वो किताबों की दुकान के सामने रुक गया। बददिक्कत कदम उठाए और करीब आया। बंगार आया मलाइयो है? थूक निकल के इस्तफसार किया। वो कोर्स की किताब थी और हर जगह मिल जाती थी। दुकानदार ने झट इसे थमा दी। एडम ने दोनों हाथों में उसे थामा और ऊपर चेहरे के सामने ले आया। धूप में उसका सरे वर्क चमक रहा था। मलाया का फूल, अज आदम बिन मोहम्मद। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। फिर उसने नफी में सर हिलाया और किताब वापस कर दी। दुकानदार हैरान हुआ। नहीं चाहिए? ऐसी किताबें पढ़ के माजी की खौफनाक कैद याद आने लगेगी और इस सब को याद करने के लिए बहुत हौसला चाहिए।
दिल में सोचा मगर कहा सिर्फ इतना, अभी नहीं, कुछ वक्त गुजर जाए तो शायद इसे खरीद लूं, या जैसे बचपन में चॉइस में छोड़ दिया था अब भी छोड़ दूं। इसको पढ़ना या ना पढ़ना मेरी अपनी चॉइस है। दुकानदार ने किताब रख ली और एक उचटती नजर इस नौजवान पे डाली जो अब कदम उठाता दूर जा रहा था। दुनिया अजीबो गरीब नमूनों से भरी पड़ी है, दुकानदार ने सोचा और सर झटक के वापस काम करने लग गया। वो घर में दाखिल हुआ तो छोटे बगीचे में ठंडी छाया उतरी थी। मुर्गी अपने पिंजरे में पुरसकून बैठी चूजों को परों में दबाई हुई थी। दीवार पे रखे बाजरे की प्लेट से परिंदे दाने चुग रहे थे। उसने अंदर आके गेट बंद किया तो परिंदे झपाक से उड़ गए। वो सीधा हुआ तो देखा बरामदे में माँ खड़ी सोगवार गीली नजरों से उसे देख रही है। माँ, कुछ हुआ है क्या? उसका हाथ धीरे से पहलू में आ गिरा। नजरें माँ पे जम गईं। एडम, फातिमा के वालिद ने शादी से इनकार कर दिया है, मंगनी का सामान भी वापस भेज रहा है। आइबो ने पलकें झपकाई तो आंसू टूट के गिरते गए। एडम ने देखा पहले बाएं आंख से आंसू गिरा था। इसने कहीं पढ़ा था कि जब इंसान दुख से रोता है तो आंसू बाएं आंख से पहले गिरता है, जब खुशी से रोता है तो दाएं से। उसकी नजर इस आंसू के साथ नीचे लुढ़कती गई। मैंने इनको बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। तुम्हारी नौकरी को इतना बड़ा मसला बना दिया। मुझे, इसके अल्फाज टूटे। नौकरी मिल गई है आइबो। आंसू पे टिकी नजर आइबो की थोड़ी के साथ नीचे झुकी। तनख्वाह भी अच्छी है और नौकरी भी। वो अपना ज़हन बना चुके हैं, अब नहीं बदलेंगे। कोई बात नहीं आइबो। आंसू मेरे बांध में जज्ब हो गया तो एडम का सख्ता टूटा। बस गहरी सांस ली और आगे आया। मैं अब सुरता नहीं हूँ। एडम, तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, मुझे मालूम है। आइबो ने बेआवाज रोते हुए उसका बाजू थामा तो इसने नरमी से नफी में सर हिलाया। नहीं माँ, मैंने एक बात जान ली है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आते हैं। अल्लाह ताला उनको लाता है और फिर निकाल के ले जाता है। तकलीफ होती है मगर दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने किसी को खोया ना हो। सब किसी ना किसी को खोते हैं माँ। कोई बेवफाई के हाथों, कोई मौत के बाइस और कोई जरा सी गलत फहमी की वजह से। मगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। बेकसूर होते हुए भी कोई हमें छोड़ दे, ये तो नाइंसाफी होती है। कहा ना, लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और अल्लाह ताला उनको इसलिए हमसे दूर कर देता है ताकि हम अपने आप से करीब हो सकें। मैं अपने असल से मुतारिफ हो चुका हूँ माँ। मुझे जिंदगी की कुछ कुछ समझ आने लगी है। मैंने फातिमा के लिए लिखना नहीं छोड़ा, किसी आम सी जिंदगी और नौकरी पे राजी नहीं हो गया। मुझे आम जिंदगी नहीं चाहिए। माजी ने मुझे ये सिखाया है कि अगर एडम बिन मोहम्मद के ताया उसके बारे में बड़े ख्वाब देख सकते थे तो एडम उनका पूरा भी कर सकता है। एडम, तुम कुछ दिन के लिए हर चीज से दूर होके छुट्टियां गुजारने कहीं दूर चले जाओ, अपने ज़हन को सुकून दो। और आइबो परेशानी से इसका इतना पुरसकून अंदाज देख रही थी। इस शोर हंगामों से भरपूर दुनिया से दूर बहुत छुट्टियां गुजार ली एडम ने माँ। अब इस दुनिया में वापस आने का वक्त है। अब इस दुनिया के राज खोजने का वक्त है। मैं मलाका जा रहा हूँ, वहां कुछ है जो मेरा मुंतजिर है। नरमी से कह के वो अंदर की तरफ बढ़ गया। आइबो इसे भीगती आंखों से जाते देखती रही। वो टूटे दिल के साथ नौकरी कैसे करेगा। वो परेशान थी मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका दिल कदीम मलाका में कब का टूट चुका था। अब तो दिल को दोबारा से जोड़ने का वक्त था। रात भर बारिश बरसती रही तो सुबह तक केरल की सड़कें खूब गीली और मौसम खूब ठंडा हो चुका था। सड़क पे गाड़ियां मामूल की रफ्तार से गुजर रही थीं और फुटपाथ पे वॉनफाते तेज तेज दौड़ता जा रहा था। इसने ट्राउजर्स पे स्याह हुडी पहन रखी थी जिसकी हुड पीछे को गिरी थी। पसीने में शराबूर वो कानों में हैंड्स फ्री लगाए बस भागता जा रहा था। एकदम एक साइकिल एन उसके सामने आ रुका। वो तेजी से रुका और पीछे हटा। अगर बर वक्त ना रुकता तो साइकिल वाले से टकरा जाता। कानों से हैंड्स फ्री निकालते वो खुफकी से इस लड़के को टोकने लगा था कि उसने एक पैकेट फातिह की तरफ बढ़ाया, हालिम की तरफ से।
हेलमेट वाले बाइक मैसेंजर ने पैगाम दिया, पैकेट थमाया और जन से साइकिल मोड़ के आगे ले गया। फातिह ने गहरी सांस भरी और पैकेट लिए एक बेंच पे आ बैठा। जॉगिंग के बाइस तनफ्फुस तेज था और बाल भीग चुके थे। इसने पैकेट खोला तो अंदर चंद तस्वीर थीं। वो बारी बारी इनको देखे गया, फिर फोन निकाला और कॉल मिलाई। एक काम तो कर दिया मैंने आपका, हालिम की मुतमईन आवाज सुनाई दी। फाइल चुराने वाली तालिया नहीं थी, इसका सबूत भी भेज दिया है। हाँ देख रहा हूँ, ये सीसीटीवी की तस्वीर हैं। वो तस्वीरों को उलट पुलट करके देख रहा था। इनमें वो अशर की पार्टी से निकल के कैब में बैठती दिखाई दे रही है और फिर वो कैब में अपने घर के सामने उतर रही है। और ये, उसने आखिरी तस्वीर को सीधा किया, ये एडम है, मेरा बॉडी मैन। ये उस रात ताशा की गाड़ी मेरे पोर्ट से ले जा रहा है। जी मैं गलत था, उस रात तालिया मुराद आपके घर नहीं आई थी, वो तो कैब में घर गई थी। यानी फाइल तालिया ने नहीं चुराई। इसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। मैं खामखा इसको इल्जाम देता रहा। हालिम की तरफ खामोशी छा गई। उसके पास कहने को कुछ ना था। तो क्या एडम ने? हरगिज नहीं, हालिम ने तेजी से कहा। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कार लेकर चला गया था। यकीनन अशर ने किसी चोर को हायर किया होगा। हालिम, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? उसने संजीदगी से कहते हुए तस्वीर पैकेट में डाली। अगर तुम्हें मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जिसमें एडम आता और जाता दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें उस रात की पूरी फुटेज भी मिल गई होगी जिसमें वो चोर दाखिल होता दिखाई दिया होगा। सवाल ये है कि तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? सर, अशर ने फाइल चुराई थी, चाहे जैसे भी चुराई हो। मैंने आपको फाइल वापस ला दी है। आप इन बेकार बातों में क्यों उलझते हैं? क्या वो कोई मेरा करीबी शख्स है जिसे तुम बचा रहे हो? कोई खास मुलाजिम? मेरा सेक्रेटरी उस्मान? मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन दोस्त। फातिह साहिब, इन सवालों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जिनके जवाब अगर मालूम हो जाए तो हमें बुरे लगे। अगर किसी करीबी शख्स से गलती हो भी गई है तो मैं सेकंड चांस पे यकीन रखने वाला इंसान हूँ। खुदा हाफिज। और फोन बंद हो गया। वो जॉगिंग के बाद अपने घर में दाखिल हुआ तो इसकी कार के साथ तालियां खड़ी थी। गार्ड फासले पे मुस्तैद खड़े थे। इसे देखते ही वो सीधी हुई और जूस की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम सर। फातिह ने सलाम का जवाब दिया और एक गहरी नजर उस पर डालते हुए बोतल थाम ली। तो ये लड़की चोर नहीं थी। फिर ढक्कन खोलते हुए सोच के बोला, तुम्हारी पेंटिंग बन गई जो मलाका वाले घर में बनाना थी? अंदाज नरम था। बस समझे काम हो ही क्या है। तुम अब भी वो घर खरीदना चाहती हो? सरसरी सा पूछते हुए बोतल लबों से लगाई। तालिया सादगी से मुस्कुराई। नहीं सर, मैं चाबी कुछ रोज में आपके हवाले कर दूंगी। वोन फातिह के अंदर अफसोस से उभरा, मगर बोला कुछ नहीं। खामोशी से बोतल ऊंची किए घूंट भरता रहा। वो मुंतजिर सी उसका बोतल वाला हाथ देखती रही, क्योंकि बोतल इसने तालिया को ही पकड़ानी थी। हाथ का जख्म अब मुंदमिल हो चुका था। नजरें उंगलियों से कलाइयों तक फिसली तो एकदम वो मुंजमिद हो गई। फिर एहसास हुआ कि वो बोतल बढ़ाए हुए है। गड़बड़ा के जल्दी से उसे थामा। वो नाखुश लगता था। आपका पसंदीदा जूस था ये सर। ये बात नहीं है, मेरे टेस्ट बर्ड्स आजकल किसी शय को पसंद नहीं कर रहे। वो सर झटक के बोला, फिर से यक टक खुद को देखते हुए पाके पूछा, क्या? आपकी घड़ी दिख रही थी। वो संभली। आप ये अपने साथ ऑफिस नहीं पहन के आते है ना? ये फिटनेस वॉच है लड़की, सिर्फ वर्कआउट के वक्त पहनता हूँ। वो सर झटक के आगे बढ़ गया। तालिया के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। इस रात वोन फातिह कहाँ गई थी ये जानना कुछ मुश्किल नहीं है दातन। वो कार से टेक लगाए मुस्कुरा के मैसेज टाइप कर रही थी। इस रात की वीडियो में घर से निकलते फातिह ने फिटनेस वॉच पहन रखी थी। वो जॉगिंग के अलावा इसे कभी नहीं पहनते। वो घड़ी एक क्लू था। फिटनेस वॉच में जीपीएस होता है। हमें उस घड़ी का डेटा चाहिए। इस रात वो किस सड़क किस जगह से गुजरे हैं और वहां कितनी देर रही हैं, सारा नक्शा सामने आ जाएगा। वो चाहते थे कि मैं उनके कदमों के निशानात का पीछा करूं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के वो वॉच पहनी थी। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो अंदर आया तो असरा डाइनिंग टेबल पे मौजूद नाश्ता कर रही थी।
बस एक निगाह गलत उस पे डाली और दोस्त पे जाम लगाने लगी। तुम कागजाती नामजदगी वापस ले रही हो या नहीं फाते? अजीब अंदाज था उसका। तुमने उस रात ताशा को हमारे घर से कार ले जाते खुद देखा था? वो तौलिए से गर्दन पूंछता सामने आया और संजीदगी से पूछा। असरा ने इस गैर मुतवक्के सवाल पे चौंक के उसे देखा, पे कंधे उचकाए। हाँ, उसने कहा था कि वो कार लेने जा रही है और मुलाजमों ने भी यही बताया था कि वो खुद आई है। क्यों? मुलाजमों को बुलवाओ, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। असरा ने जोर से छुरी प्लेट में रखी और चेहरा उठा के नागवारी से उसे देखा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है क्या? उसने तौलिए को गर्दन और बाजुओं पे मलते हुए गौर से उसे देखा। इतना गुस्सा क्यों असरा? असरा ने बेबसी से नैपकिन परे फेंका। मुझे नहीं मालूम उसने फाइल चुराई थी या नहीं, लेकिन क्या हम इस टॉपिक को बंद कर सकते हैं? जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हर चीज खराब होने लगी है। वो गुस्से से कह रही थी। क्या अब हम इसकी वजह से सुबह ही सुबह लड़ेंगे? इसको हमारी जिंदगी में कौन लाया है, मैं या तुम? फातिह ने सवालिया अंदाज में कंधे उचकाए। तुमने कहा उसको डिनर पे बुलाओ, उसको अच्छा ट्रीट करो, वो घायल गजाल खरीदेगी। तुमने कहा इसे मलाका वाला घर दे दो। ये तो नहीं कहा था कि इसे 24 घंटे सर पे सवार कर लो। वो न जाने किस बात में इतनी गुस्सा थी। ये सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हारे भाई ने कहा था कि इसे जॉब दो, वो बाहर खड़ी अपना काम कर रही है। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? वो वाकई हैरान हो रहा था। एक पैसा आज तक उसने नहीं दिया, मेरी नीलामी में ना घर के किराए की मद में। सिर्फ पेंटिंग दी जो पता नहीं असली थी या नकली, मगर जब से ये आई है तुम घर आना भूल गए हो। असरा, हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, तुम्हें मालूम है मैं मसरूफ, इसीलिए तो कहती हूँ कि मत कदम रखो इस दलदल में। एक आर्याना को खोना कम था क्या? मेरे दूसरे बच्चे भी दुश्मनों के निशाने पे आ जाएंगे। हम ताशा और उस फाइल की बात कर रहे थे, ये आर्याना दरमियान में कहां से आ गई? वो जो बात को घुमा फिरा के दूर ले गई थी, अपनी चोरी पकड़े जाने पे गुस्से से कुर्सी धकेलती उठ खड़ी हुई। आर्याना दरमियान से चली गई है, यही तो सारा गम है फातिह। बहरहाल इस लड़की को मैं तुम्हारे साथ काम करते नहीं देखना चाहती, इसे फारिग करो प्लीज।